Board, question number 1. A peacock is sitting on the top of a pillar. Okay, just you see one of the pillar. This one is pillar खंभा है and 9 meter high है from the surface. You see from a point 27 meter away from the bottom. Suppose a point C, it is 27 meter away from the bottom of the pillar. This is the bottom of pillar, and snake is coming. यहाँ एक snake है. This is the position of the snake, and coming to its hole. Here is hole. At the base of a pillar, seeing the snake, the peacock pounces on it. Here is peacock, and it pounces. Okay, after covering some of the distance by the snake. And suppose at this point, that means A, B, C, and at point D, it is caught. A snake is caught. If their speeds are equal, so you see this distance, that means BD, and this distance, that means CD. Okay, CD. Okay, here is snake, this equal x. The speeds are also equal. Okay, so you have to find the distance from the hole is snake caught. Okay, are equal at what distance from the hole? Okay, a snake caught, that means this one. होल से होल ये है, तो कितने डिस्टेंस पर ये कॉट किया गया. लेट okay, AB be the pole, okay, B is the position of peacock, and CB position of snake. Okay, you see, let at point D snake is caught. Okay, snake is caught, that is CD equal to BD. let x, इसको x मान लिया. ओके, एंड नाउ AD इज इक्वल टू 27 माइनस x एज AC इक्वल टू 27 मीटर. ओके, इट इज गिवन. स्पीड्स आर इक्वल. सिंस स्पीड्स आर इक्वल, so distances covered by snake and also by peacock are equal. Okay, because time are same, so that means AD, that means CD equal to BD. Now in right triangle ABD. Okay, ABD में क्या होगा? AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, एंगल DAB 90 डिग्री. सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. Here AB is equal to given height of pole, that is 9 meter. So BD means
BD means x square. AD means 27 minus x whole square. Yes, AD is somewhere given. And plus AB that means 9 square. Just you see x square equal to 729 minus 54x plus x square, 9 9 is 81. This x square cancel. So 54x equal to 9 1 10 11 and this one 8. Okay. So here x equal to 810 by 54 and 615. Does this mean that the distance covered by snake, okay, and speed are equal? So what distance from the hole is snake caught? So this 115. So 15 minus 12. Sorry, 27 minus 12. That means AD equal to AC minus CD. AC is 27 meter and CD is equal to X, that means 15 meter. So at 12 meter from, okay, from the hole, the snake is caught. Now students, question number 2. The hypotenuse of a right angled triangle is 1 meter less than twice the shortest side. If the third side is 1 meter more than the shortest side, find the sides of the triangle. You see, this is the right triangle and 1 meter less than twice the shortest side. It is shortest side. So ये hypotenuse है 1 meter less than twice the shortest side, and you see third side 1 meter more than shortest side. Third side is 1 meter more than shortest side. You have to find the sides of the triangle. Okay. Let 1 meter less than twice the shortest side. Okay. Let shortest side length be x and in meter. Hypotenuse length 2x minus 1. It is also in meter. Third side length it is x plus 1 meter. As you know, by Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to x square, यानी one side plus other side square. अब यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 1. Here 4x square minus 4x plus 1 minus 2x square, because x square plus x square minus 2x square minus 2x minus 1 0. यहाँ से 4x स्क्वायर में 2x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0. 2x माइनस 3, तो आइदर 2x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 मिलेगा. साइड ऑफ लेंथ जो है, लेंथ का साइड का लेंथ जो है वह 0 नहीं हो सकता है, रिजेक्टिंग कर दिया जाएगा. रिजेक्टिंग इनएडमिसिबल. इफ़ x माइनस 3 को 0 लेंगे और x इक्वल टू 3 और यहाँ से सभी साइड्स निकालेंगे
तो सबसे शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ, शॉर्टेस्ट साइड आ जाएगा x यानी 3 मीटर, एंड हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1 मीटर यानी 6 माइनस 1 5 मीटर, एंड थर्ड साइड आ जाएगा, थर्ड साइड इक्वल टू 3 प्लस 1 मीटर यानी 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, A takes 10 days less than time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish the work in 12 days, find the time taken by B to finish the work. As students, you have studied in previous class also time and work problem, one of the most common chapter. Also, you have studied in linear equations in 2 variables, such type of problems, but now in 1 variable you have to solve it in quadratic equation chapter. But this is the same way you must understand. First कहता है find the time taken by B to finish the work, जबकि कहता है A जो है 10 days कम लेता है B से, तो लेट टाइम टेकन बाय B टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क B X days. Then time taken by A कम लेता है 10 days to finish the same piece of work B 10 days कम लेता है। ओके, कहता है कि जब दोनों मिलकर के काम करता है तो 12 डेज लेता है। टाइम टेकन बाय बोथ, टाइम टेकन बाय बोथ टू फिनिश द सेम वर्क, इट इज क्लियर। 12 डेज, 1 डे का हम तीनों का निकाल देंगे, तीनों नहीं बल्कि 3 पार्ट का। तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे, ए के 1 डे वर्क हो गया 1/x, 1/x माइनस 10। वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय बी इन 1 डे, इनका हो गया 1/x, और वर्क डन बाय ए एंड बी बोथ, इनका हो गया 1/x माइनस 10 प्लस 1/x, और जो दिया है क्या 12 डेज इज इक्वल टू 1/12। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमने यहाँ कंप्लीट ही कर लिया। अब ये 1/x माइनस 10 प्लस 1/x 1/12 को सॉल्व किया जाएगा। x माइनस 10 को x से मल्टीप्लाई, यहाँ x प्लस x माइनस 10 1/12, यहाँ से 2x माइनस 10 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x 1/12। अब सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 10x, 12 2 जा 24x, 12 10 जा 120, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x प्लस 120 को 0,
ओके, यहाँ से देखिए, ओके 1x² ओनली। अब देखिए x² माइनस 34x प्लस 120 0। अब a को 1 लेते हैं, b माइनस 34, c 120, db² माइनस 4ac माइनस 34 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 120। मल्टीप्लाई करेंगे 34 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 6 5 1 1। इट मीन्स 1156 माइनस 480 6 676। अब जब 676 आ गया तो हम अब सॉल्व करेंगे b के लिए, यानी x क्या हो जाएगा, x माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a माइनस माइनस 34 प्लस माइनस रूट 676 बाई 2 1 34 प्लस माइनस 26 बाई 2। अब देखिए दो वैल्यू आएगा x का, एक तो 34 प्लस 26, 4 6 10, 3 2 5 1 6 बाई 2। तो एक तो x का 30 और दूसरा आएगा 14 में 6 गया और ये 8 बाई 2 यानी 4। अब यहाँ देखिए एक तो 10 डेज कम लेता है तो x का 4 तो हो ही नहीं सकता है, तो ये जो है रिजेक्टिंग है। क्यों? 10 से कम नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब b कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, टाइम टेकन, हैंस टाइम टेकन बाय b alone टू फिनिश वर्क इज इक्वल टू कितने डेज हो जाएगा, 30 डेज। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। टू फिल ए स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड। ये आपका स्विमिंग पूल है और 2 पाइप्स को यूज़ किया जाता है, एक ज़्यादा मोटे डायमीटर वाला और एक छोटे डायमीटर का। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज्ड 4 आवर्स, लार्जर डायमीटर वाले 4 आवर्स यूज किए जाते हैं, एंड स्मॉलर डायमीटर जो है ये 9 आवर्स यूज किए जाते हैं। और ये जब इतने यूज़ किए जाते हैं तो पार्ट आधा ही, हाफ पार्ट फिल्ड होते हैं। इफ़ द पाइप स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स, ये 10 आवर्स मोर लेता है इससे। तो बताना है आपको कि लार्जर और स्मॉलर दोनों सेपरेटली कितने टाइम में फिल करते हैं। तो लेट, ओके, टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप टू fill pool be x hours and time taken by a smaller diameter tap to fill a pool। ये 10 आवर्स मोर लेता है। दोनों के 1 आवर का हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, पार्ट
क्योंकि ये प्रॉब्लम है टाइम वर्क रिलेशनशिप से 8th में पढ़ा और फिर 10th के ही आप चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में भी पढ़ा। तो पार्ट फिल्ड बाय लार्जर डायमीटर टैप इन हाउ मेनी आवर, इन 1 आवर। 1 आवर में 1/x एंड पार्ट filled by a smaller diameter tap in 1 hour, 1/x plus 10। अब देखिए कि स्मॉलर डायमीटर और लार्जर डायमीटर के कितने कितने टाइम्स लिए गए हैं। देखिए लार्जर के 4, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 आवर में 4/x हो जाएगा और 9 आवर्स में 9/x प्लस 10 हो जाएगा और पार्ट जितना फील्ड हुआ वह हाफ है। यहाँ से LCM x और x प्लस 10 का x इंटू x प्लस 10, 4x प्लस 40 प्लस 9x 1/2, ये 13x प्लस 40, 13x प्लस बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10x 1/2, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 10x 26x प्लस 80, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 26x माइनस 80 0। तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस ये आ गया 16x माइनस 80 0। यहाँ से आ गया कितना, फैक्टोराइज कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4x माइनस 80 0। कॉमन लेंगे x तो x माइनस 20, यहाँ से कॉमन लेंगे 4 तो x माइनस 20, यानी 2 लीनियर फैक्टर मिला, एक x प्लस 4 के रूप में और x माइनस 20 के रूप में। अब यहाँ से आइदर x प्लस 4 को हम अगर इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू माइनस 4। टाइम तो कभी नेगेटिव होता नहीं, टाइम कांट बी नेगेटिव, टाइम कांट बी नेगेटिव, सो इट इज एडमिसेबल, इट इज इनएडमिसिबल, ये वैल्यू एडमिसिबल है, इनएडमिसिबल है। और अब देखो इफ़ x माइनस 20 को 0 माने, x इक्वल टू 20, और इस आधार पर हमको जो लार्जर का टाइम मिला वह 20 आवर्स, स्मॉलर का 30 आवर्स, हैंस टाइम टेकन बाय लार्जर diameter tap is equal to 20 hours and a smaller diameter tap in 30 hours. Question number 5. Some students planned a picnic. The budget for food was rupees 480, but 8 of these failed, and thus the cost of food for each member increased by rupees 10. How many students attended the picnic? कितने स्टूडेंट्स अटेंड किया? प्लान्ड को x मान लीजिए, प्लान्ड नंबर जो है ना स्टूडेंट्स का x है, और अटेंडेड नंबर
या अटेंडेड को ही आप x मानो, अटेंडेड नंबर को आप x मानो, और प्लान्ड नंबर फेल कर गया तो कितने फेल किया, 8 फेल कर गया। इस तरह से आप स्टूडेंट्स हु आर अटेंडेड x, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who attended the picnic bx, x स्टूडेंट्स पिकनिक को अटेंड किया, एंड बट प्लान्ड स्टूडेंट्स नंबर, बट नंबर या ऐसा लिखो कि 10 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लान्ड, जो प्लानिंग किया, बी 8 स्टूडेंट्स तो फेल कर गया, तो x और प्लस 8, ओके, इतना ने प्लान किया था। और टोटल बजट कितना है, टोटल बजट ये बजट है ₹480। तो इस 480 को इसने खर्च किया, मतलब इतने स्टूडेंट्स ने, दैट मीन्स कि कम स्टूडेंट्स ने तो ज़्यादा खर्च किया, और ये ज़्यादा स्टूडेंट्स, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x + 8 ज़्यादा है, ओके, तो ये कम खर्च करेगा। तो नाउ कहता है 10 इंक्रीज कर जाता है, 10 इंक्रीज किया, दैट मीन्स जो प्रत्येक का बजट है, इसे प्लान किया x - 8 और टोटल कितना है, टोटल 480, तो इसके पर स्टूडेंट जो इनके एक्सपेंस हैं वो 480 बाय x - 8, ओके, अटेंडेड x, ओके, टोटल अटेंडेड x एंड दिस वन प्लान्ड x + 8, प्लान्ड x + 8 अटेंडेड x, और प्लान्ड x + 8 प्लान किया ज़्यादा, ओके, तो 480x और 480 बाय x, कौन सा ज़्यादा हो जाएगा, देखिए, सिंस x + 8 जो है ये नंबर ज़्यादा है, तो दैट मीन्स ये जो है ये लेस हो जाएगा, दैट मीन्स 480 बाय x माइनस 480 बाय x + 8, ये इज इक्वल टू कितने कितने खर्च हैं, 10 जो है वह इंक्रीज कर गया। अब देखिए ये 480 कॉमन, 1 बाय x माइनस 1 बाय x + 8, ये 10, ये आप कैंसिल कर सकते हो। x और x + 8 का LCM x × x + 8, x + 8 माइनस x, सो दिस हो जाएगा 1/48। अब यहाँ से आएगा x² + 8x इज इक्वल टू 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32, ओके, 38 32 6 38, 8 8 जा 64 6, 8 4 जा 32 6, ओके। नाउ x² + 8x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 8 और c इक्वल टू माइनस 384, d b² माइनस 4 × 1 × माइनस 384, जैसा कि जानते हो कि d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, 64 प्लस 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 33, 3 4 3 जा 12, 3 15, 0 0 1 6। अब x निकालिए, x माइनस b प्लस माइनस √d/2a माइनस b कितना है 8 प्लस माइनस √1600 2 एंड 1, तो -8 प्लस माइनस 40/2। तो x के दो वैल्यूज हुए,
एक -8 प्लस 40/2 यानी 32/2 16, और दूसरा वैल्यू x इक्वल टू -8 माइनस 40/2 -48/2 -24। तो ये तो रिजेक्ट कर जाएगा, माइनस वाला रिजेक्ट कर गया। हेंस जो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड, टोटल स्टूडेंट्स नंबर हु वर अटेंडेड a picnic is equal to 16। ओके, 6 में ₹9,000 were divided equally among a certain number of persons। 9,000 रुपीज़ को कुछ ऐसे संख्या वाले पर्सन्स के बीच में डिवाइड किया जाता है कि कंडीशन है कि अगर 20 और पर्सन्स को बढ़ाया जाता है तो कहता है कि प्रत्येक को 160 जो है कम मिलता है। तो ओरिजिनल जो है नंबर कितना है पर्सन्स का, तो लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स, ओरिजिनल को x मान लीजिए, ठीक है। और टोटल मनी कितना है, टोटल मनी टू बी डिवाइडेड, ये है ₹9,000। अब नंबर ऑफ इंक्रीज्ड पर्सन, अगर ज़्यादा आदमी हो गया, नंबर ऑफ इंक्रीज्ड पर्सन्स, ये है कितने संख्या बढ़े, 20 संख्या बढ़ गए। और अब जो मिलेगा, नाउ शेयर ऑफ ईच पर्सन when number of persons are increased, number of persons are increased, जब increased हो जाता है तो यही 9,000 रुपीज़ को बांटा जाता है x + 20 के बीच, और तब मिलता है 160 लेस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 9,000 को बांटा जाता है x + 20 के बीच, ये कम है, जबकि पहले वाले में 9,000 को ही x में बांटा जाता है तो ये ज़्यादा है। और कितने ज़्यादा देखिए, 160। अब क्या है, दोनों के शेयर का डिफरेंस 160 है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9,000 कॉमन लिया जाए, यहाँ से 1/x - 1/x + 20 160, 1 0। अब है कि ये सॉल्व करेंगे तो x + 20, यहाँ x + 20 - x कुल आएगा 16/900, 4 4 जा और 225, यहाँ से कैंसिल होने पर देखिए ये 20, ओके 20 को भी आप इधर ले आओ तो सीधे 1 बचेगा। ये x² + 20x = 4/225 × 20, 4 5 जा, यहाँ से x² + 20x = 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 2 12, 1 5 2 जा 10, 1 11।
एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 11250 इज इक्वल टू 0। ए यहाँ 1 है, बी 20, सी माइनस 1125। डी पहले फाइंड आउट करेंगे, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1125 माइनस में है, ये हो जाएगा 400 प्लस 4 से 440045 4500 ये 4900, ये 70 का स्क्वायर है। अब x निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, बी है 20 माइनस 20 प्लस माइनस रूट 70 स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 माइनस 20 प्लस माइनस 70 बाई 2। इस तरह से x के दो वैल्यू, एक माइनस 20 प्लस 70 बाई 2 यानी 50 बाई 2 25, और दूसरा x इक्वल टू माइनस 20 माइनस 70, ओके, बाई 2 माइनस 90, तो माइनस 45 को तो हम लोग रिजेक्ट ही मानेंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं होता है। हेंस टोटल नंबर ऑफ, ओके, original number of persons, total original number of persons, original number of persons का वैल्यू आया 25 के बीच में 9000 जो है, और among 25 स्टूडेंट्स डिवाइड किया गया।